जय गुरु जी। सारी संगत का गुरु जी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरु जी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਜਦ ਆਹ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢੋਕਲਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਇਆ, ਬਟ ਨਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਹਾਏ ਇੱਕ ਢੋਕਲਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਢੋਕਲਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਲੇਟ 'ਚ 2 ਢੋਕਲਾ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈंने ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਢੋਕਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉसी ਵਕਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉसी ਵਕਤ ਢੋਕਲੇ ਦਾ ਪੀਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਚੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਿਲਸ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਟ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸੱਟ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਗੀ ਸੋ ਲੱਗੀ, ਕੰਚ 'ਚ ਘੁਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਓ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭੋ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈਟਲਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਅੜਕ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਤੇ ਬੈਂਡੇਡ ਲਗਾਈ, ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਮੈਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਔਖੀ ਜੀ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਗਾ ਇਸ ਤੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਚੀਕ ਚੁੱਕ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਬਟ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੇ, ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਜਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਂਚੀ ਹੈ, ਕਾਂਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਕਢਵਾ ਤਾ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का शुक्रवार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना नंतम नंतम शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना। गुरु संगत जी आज शुक्रवार का दिन है और गुरुपा का आदेश था कि बेटा शुक्राना कर। मैंने तुझे शुक्राना करने की सेवा दी है और तू शुक्राना नहीं करती है। बाबा मैं भूल जाती हूँ, आप सब जानते हैं, दुकान पे जाना फिर आना आना। देखिए संगत जी गुरुपा डांट भी लगाते हैं कि बेटा तू मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहती है। मुझे माफ़ करना गुरुपा, बस कई बार देख लेती हूँ लेकिन आंखों पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है मेरा, इसके लिए अब मैं मोबाइल भी कम ही देखती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे डांट लगाने के लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, आपका हर रहमो करम के लिए शुक्राना। संगत जी गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि बेटा तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो कष्ट आ रहा है, मैं उसे ले लूँगा, तू चिंता मत कर, पर तू शुक्राना कर। बाबा आप जाने जहाने अंतर्यामी, आपको सब पता है कब कहाँ कैसे होना है। बाबा आप बस आप जानते हैं ना, मेरे लिए कोई भी मतलब कि धन दौलत नहीं है बच्चों के सिवा। दोनों बच्चे ये भी आप ही के हैं गुरुपा, आप ही के नाती हैं। मैं नहीं जानती क्या गलत है क्या सही है। कौन सी औरत है जो बेटे के पीछे पड़ी है और उसको सब बर्बाद कर देगी। बाबा उससे आप ही दूर करिए और बेटे का भी मार्गदर्शन करिए गुरुपा। उसके अंग संग सहाय रहना, उसकी मदद करना गुरुपा, क्योंकि वो बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है गुरुपा। और बड़ा बेटा तो आप कहते ही हैं कि बहुत भोला है, बहुत भोला है। बाबा इसके लिए भी आपने ही देखना है, आपने ही करना है। नाती बहू भी आपने ही ढूंढनी है गुरुपा, आपने ही करना करवाना है सब कुछ। मैंने सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया बाबा, आप जानो, आपका काम जाने गुरुपा। गुरुपा कहते हैं संगत जी क्या आप लोग जानते हो कि गुरु जी के हर चोले का अलग अलग महत्व है। जब भी गुरु जी किसी रंग के चोले में आपके घर में आपके सपनों में आते हैं तो उसी रंग के चोले में आपके घर में आते हैं, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी और नकारात्मकता और ग्रह शांत हो चुके। गुरु जी के हर चोले का अपना अलग अलग महत्व है, इसलिए गुरु जी रंग बिरंगे रंगों में जो रंग आपके घर के लिए फायदेमंद हो उसी रंग में आपको दर्शन देने आते हैं। शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कुटान कुटान शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव महादेव सदगुरु महाराज, आपके जन्म कोटि कोटि नमन। शुक्राना बाबा। कुटान कुटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। बाबा कहते कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले बेटा, जो तेरा बजट है मैं उसी में ही सब कुछ करवाऊंगा। शुक्राना मेरे दाता। कुटान कुटान शुक्राना, कुटान कुटान शुक्राना, लख सोबा शुक्राना, अरबों खरबी शुक्राना। बाबा कहते हैं तू मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बहुत सुनहरा है। बाबा आपने जब हाथ थाम लिया, आपने हमें अपना बना लिया, तो आगे का समय तो बहुत ही खूबसूरत है संगत जी, बहुत खूबसूरत है। बस गुरुपा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और गुरुपा देखिए कैसे आपको संभालते हैं। अगर आप भूल भी जाते हैं, उनका हाथ छोड़ भी देते हैं, तो हमारे बाबा ऐसे हैं कि वो कभी संगत का हाथ नहीं छोड़ते। उनका हर परेशानी दुख कष्ट से उन्हें बाहर निकालते हैं। शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, शुक्राना।
आपकी योजनाएं तो आप ही जाने गुरुपा, हमें तो मतलब कि पता ही नहीं है। गुरुपा कहते हैं कि जहाँ सोच आपकी ख़त्म हो जाती है ना संगत जी, वहाँ से मेरी रहमत शुरू होती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जब तक हम इंसानी मोह माया से बाहर नहीं ना निकलते संगत जी, तब तक हम मतलब कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। और मेरा मतलब कि अब बड़े मंदिर आने का बहुत मन है गुरुपा, बहुत मन है। बाबा आप ही जानिए कैसे क्या होना है। बाबा कहते कि कोई बात नहीं बेटी, तू नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, मैं ही तेरे पास आ जाता हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मुझे नंबर ब्लेसिंग करने के लिए शुक्राना, मुझे ज्योत में दर्शन देने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना दाता, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा खुद कहते हैं कि कब क्या देना है, इसलिए तू बस धैर्य रखा कर। एक तो तू सबसे बातें कर देती है, सबसे अपनी बात मतलब कि बता देती है, इसीलिए तुझे नज़र लग जाती है, और तुझे नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। शुक्राना बाबा। हम अपनी बेटी को नज़र से बचाने के लिए भी शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना बेटी के। और संगत जी जो भी रुकावट आ रही है गुरुपा कह रहे हैं वो मैं तुझे सारी रुकावटें मैं तेरी दूर कर दूंगा। अगर जिंदगी ने तुम्हें बार बार निराश किया है ना, तो उम्मीद का हाथ मत छोड़ो। कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने देर से देते हैं, लेकिन कभी अनदेखा नहीं करते संगत जी। जो आज तुम्हें रुकावटें लग रही हैं वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना बेटा। अंधेरा चाहे कितना ही गहरा हो संगत जी, लेकिन सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं उम्मीद वही दीपक है जो सबसे कठिन समय में भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए मुस्कुराते रहो, कभी मुस्कुराते रहो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी तुम्हारी जिंदगी का भी सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखना बाकी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। मेरी बहन आंटियों की तरफ से भी आपका अरबों खरबी शुक्राना। उसका ऑपरेशन सही करवाने के लिए शुक्राना बाबा। बस उसे हिम्मत देना गुरुपा, दोनों बहनों को मेरी हिम्मत देना, तीनों को, वो भी आप, उन्हें भी आप अपनी संगत बना लीजिए गुरुपा। उन पर अपनी कृपा बनाए रखिए और बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाइएगा गुरुपा। सबको खूब खूब खुशियाँ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा अपनी इस बेटी की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना और अपनी चरणी शरणी लगाए रखना, भक्ति शक्ति देना, हमारे ऊपर कृपा भाव बनाए रखना गुरुपा। अगर हमसे कभी गलती हो जाती है तो हमें माफ़ कर देना और हमारा मार्गदर्शन करना गुरुपा। हमारे मन के मैल को ख़त्म कर देना। और जो भी वो औरत है मेरे बेटे के पीछे पड़ी है गुरुपा, आप जानी जान है, आप ही जानो क्या करना है क्या नहीं करना है गुरुपा। बस उसका हर काम बना देना गुरुपा, और बड़े नाती बेटे का भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हुई बाबा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और राज अंकल जी की हर अरदास पूरी करना, वो हमारे लिए इतना अच्छा, उनके चैनल को भी खूब ब्लेस करना गुरुपा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी का महामंत्र है, जितना आप जपोगे उतना आपका कल्याण होगा। संगत जी, एक परिवार से एक भी सदस्य गुरु जी के साथ जुड़ जाए तो उसका सारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। और उसके रिश्तेदार जो भी हैं सबका कल्याण कर देते हैं गुरुपा। ऐसे गुरु को बलि बलि जाऊं।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे गुरु जी की नाती का बर्थडे था। पंडित को बुला के गर्भ पूजा करी थी। उसके बाद आरती उरती सब किया, हवन ववन किया, खाना वाना खाया, नाश्ता पानी जो भी था। 1-1:30 बजे इतना भयंकर दर्द हुआ मेरे कि पेट में इतना जोर से दर्द हुआ, बहुत बुरी तरह से सहन नहीं कर पाए। फिर मेरे पति ने पानी पुनी पर बनाया, बोला गैस कुछ हो गई, वो भी पिया थोड़ा। उसके बाद थोड़ा आराम तो मिला। उसके बाद फिर दोबारा होने लगा। फिर हम 4 बजे करीब अपने आर्मी हॉस्पिटल गए। वहाँ देखा तो बहुत दर्द से तड़प रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि पथरी का दर्द हो सकता है, ये हो सकता है। गुरु जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा हमारा। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, उसमें कुछ भी नहीं निकला। गुरु जी ने जो भी है, गुरु जी ने हमारा बहुत बड़ा संकट काटा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु का। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं गुरु जी की वो प्यारी बेटी हूँ जिसका हाथ गुरु जी ने पकड़ा है। मैं पकड़ती तो छूट भी जाता, लेकिन गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा है। उन्हें मुझे बहुत ब्लेस किया है। अपनी बेटी को अच्छा घर बार दिया है और बेटी माँ बनने वाली है 1 साल बाद शादी की। तहे दिल से शुक्राना गुरपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। ऐसे सोचा नहीं था कि ये सब अच्छा हो। जितना हमने सोचा नहीं, सब उससे भी कहीं अच्छा सब कुछ है गुरपा। थैंक यू गुरपा, तहे दिल से शुक्राना गुरपा। कुछ दिन पहले ऐसे लग रहा था हमारे घर में चोर आ रखे वो खाना खा रहे पता नहीं चोर आ रखे थे सपने में। ऐसे सपने होते रहते गुरपा, पता नहीं हमारे कितने कष्ट काटते रहते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरपा। गुरपा बोले जो तेरी बीमारी को बांध रखा है। एक हमारे परिवार में पति पत्नी है, वो बार बार करते रहते हैं। गुरु जी बोले मैंने उनका किया हुआ उन पे लौटा दिया है। पता नहीं गुरपा वो पूर्णमासी अमावस्या को क्या करती है। अभी पूर्णमासी में मेरे भयंकर दर्द हो गया था गुरपा। एक दांत तोड़ा था, उसके ऊपर एक छाला हो रखा है, 6 महीने हो गए, वो भी ठीक नहीं हो रहा गुरपा। एक पीठ में हो रही फुंसी बाल तोड़ टाइप का, वो भी 2-3 साल से ऐसे हो रहा है। कभी पकता है, कभी ठीक हो जाए, कभी पकता है, कभी ठीक हो रहा है। और गर्दन में बहुत दर्द होता है, सर्वाइकल का। कमर में नस दबी हुई है, साटिका का दर्द होता है, पैरों में, कंधों में, सारा शरीर दुखता है गुरपा। फिर भी गुरु की कृपा से इतनी हिम्मत है कि मैं अपना काम कर पा रही हूँ। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पोता ब्लेस किया है। वो अभी कुछ दिन पहले मम्मी जो छोटा सा था दादा मम्मी बोल रहा है, आजकल कुछ नहीं बोल रहा गुरपा। आप देख लो गुरपा, कभी कभी बोला पापा पापा पापा, कभी मतलब 1-1.5 साल का हो गया तो अच्छा सा नहीं, कुछ नहीं बोल रहा, बोलेगा कुछ। गुरपा आप देखो, जो भी परेशानी है ब्लैक मैजिक करने वालों ने तो हद ही कर रखी गुरपा। जो भी है परेशानी गुरपा आप देखो। आप गुरपा बहुत दिन से बोले बंगला ब्लेस करना, पता नहीं ये घर हमारे लिए शुभ है कि नहीं शुभ है, परेशानी बनी रहती है गुरपा। गुरपा बोले ने बंगला ब्लेस्ड कर रहा हूँ, पता नहीं गुरपा कब मिलेगा। ये घर शुभ है, इसी घर को मैं ब्लेस कर दो गुरपा।
दूसरा बन जाए तो ठीक है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। नज़र का बता रहे थे, पता नहीं गुरुपा नज़र लगती क्या है, परेशान होती रहती हूँ। जो भी है गुरुपा आप काट दो, आप हैं तो हम आपके भरोसे बैठे हैं गुरुपा। कुछ भी होता है अब टेंशन नहीं होती है, इतनी गुरुपा बैठे हैं, सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दारू के लिए बोल रहे थे गुरु जी, घर में बच्चे पति दारू पीते रहते हैं, उनके लिए एक उपाय बता रहे थे। जब भी वो दारू पीटने के लिए बैठते हैं तो गुरु जी के पास बैठ के गिलास में जल रख के 7 बार मंत्र जाप करके वो जल खुद पी लो। वो लोग तो क्या पिएंगे, वो सोचते हैं हमें क्या दे रहे हैं। खुद पी लो और ये बोलो गुरुपा ये जल उन तक पहुँच जाए और उनकी दारू छूट जाए। मैं कर रही हूँ काफ़ी दिन से, दो कर रही थी, अब देखते हैं क्या होता है। और एक उपाय बताया था गुरुपा ने, जो दारू पीने के बाद बहुत लड़ाई झगड़ा बहुत बोलते हैं, घर में कला कलेश करते हैं, उनके लिए गुरु जी ने बोला था उनका नाम लिख के और किसी एक पेपर में नाम लिख के किसी भी गमले में दबा दो। उसका तो असर मुझे दिखा था गुरुपा। मेरा बेटा बहुत वो करता था दारू पीने के बाद, लेकिन मैंने ये उपाय किया, उसके बाद वो थोड़ा ठीक है, आराम है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतन अनंतन शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं परमजीत कौर न्यू दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे तीसरा आज जो सावन का दिन चल रहा है गुरु जी का, तो मैं बम बम भोले जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे शिव पुराण कथा का अध्याय सुनने का जो आपने बोला है कि वो आपको अच्छा लगता है, सावन के महीने में उसका पाठ करने से बहुत फल मिलता है। सभी को परिवार को सुनना चाहिए, एक मतलब करना भी चाहिए और सुनना, एक दोनों का बराबर फल है। मुझे आज ही अभी 130 अध्याय पे मैं पहुंची थी और उसमें पार्वती जी की तपस्या, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि हमें इतनी इतनी जो कृपा मम्मा भोले जी ने की है कि हमें वो मिल गए हैं इस जन्म में। आज मैं संगत को ये बताना चाहती हूँ कि पार्वती माँ ने जब वो उनको मतलब 3000 वर्ष लगे थे, इतनी कठिन तपस्या करते रहे वो मम्मा भोले जी को पाने के लिए। और मैं आपको अभी यह कथा सुनाना चाहती हूँ कि संगत जी आपको पता चले कि आपको जो एक वरदान मिला है बिना किसी इतनी तपस्या, कठिन तपस्या करके, तो माँ ने मम्मा भोले जी को पाया था। तो आप सोचिए कि आपको मम्मा भोले जी मिल गए तो आपको उनसे क्या मांगना चाहिए, उनसे उनकी सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए, उनको उनसे सिर्फ उनको ही मांगना चाहिए। अब मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे भोले बाबा कि आप मुझे मिल गए, मुझे गरीब पे आपको तरस आ गया, मैं अपने सारे दुख दर्द सब भूल गई हूँ सच्चे पातशाह। मैं इतना शुक्र मनाती हूँ कि आप मुझे मिल गए, इस जन्म में मेरा जन्म सफल हो गया। पार्वती जी की तपस्या, पार्वती जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र की दिशा लेकर विचार किया कि शिव जी तप से ही प्राप्त हो सकते हैं। यह विचार कर पार्वती पिताजी के पास जाकर तप की आज्ञा मांगने लगी। पिता ने कहा, हे पुत्री, मुझे विचार अति उत्तम लगता है, परंतु अपनी माता से पूछकर ही तुम तप करने जाओ। पार्वती ने अपनी माता से तप करने की आज्ञा मांगी। पुत्री के वचन सुनकर माता दुखी हुई और बोली, हे पुत्री, यदि तुम तप करना चाहती हो तो घर पर ही तप करो। तुम्हारा शरीर कोमल है किंतु तप बहुत कठिन है।
जब माता माना ने देखा कि उमा किसी भी प्रकार मानने वाली नहीं है, तब उन्होंने उमा को तप करने की आज्ञा दे दी। इसी प्रकार उमा माता पिता आदि को प्रणाम करके तप के लिए उस स्थान पर पहुंची जहां से गंगा जी प्रकट हुई थी तथा कामदेव जी को भस्म किया गया था। वहां वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करने मन को संतुलित करके कठोर तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी में पंचा अग्नि तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती, खाना पीना पवन आदि सब विचारों को तिलांजलि दे दी। इस प्रकार कठिन तपस्या करते करते उमा जी के 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उमा के कठोर तप को देखकर सभी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए और उनके शुभ दर्शनों के लिए उनके पास गए। सबके तपन से त्रैलोक्य तपने लगे। देव दैत्य नाग यक्ष गंधर्व सिद्ध और मनुष्य सभी तपा अग्नि के ताप से विकल हो रहे थे। इंद्रादि सभी देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए। फिर मैं उन सब देवताओं को साथ लेकर विष्णु के पास गया। सबने उन्हें संत ब्रह्मांड का हाल सुनाया। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, यह पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर शंकर जी के पास चलो। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता कामदेव के भस्म का स्मरण कर भयभीत होने लगे। परंतु विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम डरो मत। भगवान शंकर तो परम दयालु हैं। वे मेरे तुम्हारे सबके रक्षक हैं। तुम सब शीघ्र उनकी शरण में पहुंचो, वे अवश्य रक्षा करेंगे। तत्पश्चात सभी देवता शिवजी के स्थान पर पहुंचे, परंतु शिवजी के समीप जाने से डर रहे थे। देवों ने तुम नारद को शिवजी के पास भेजा। तुमने शिवजी को प्रसन्न देखा और देवों को उनके समीप ले गए। फिर सभी ने शिवजी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। विवाह के लिए शिवजी की स्वीकृति। भगवान शिव के पास पहुंचकर देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे त्रिलोचन, हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। उसी समय शिवजी ने देवों से कहा, हे देवो, तुम सब मेरे पास किस लिए आए हो? शीघ्र हो। भगवान विष्णु बोले, हे शिवजी, हम सब देवता तारक दैत्य से पीड़ित हैं। आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र की उस दैत्य तारक का नाश कर सकेगा, इसलिए आप हिमाद्री सुता पार्वती के साथ पानी ग्रहण करके पुत्र उत्पन्न करें। विष्णु के वचन सुनकर शंकर जी बोले, मैं पार्वती के साथ विवाह नहीं कर सकता। मैंने काम को भस्म कर दिया है। इस पर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में लीन हो गए। तब सभी देवताओं ने नंदीश्वर के कहने पर शिव जी की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने समाधि से मुक्त होकर कहा, हे देवताओं, विवाह महान बंधन का कारण है। आप लोगों के हित के लिए मैं अपने प्रति आपकी भक्ति देखकर कभी कभी अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। अतः मुझे आप लोगों की प्रार्थना इसी कारण पूरी करनी होगी। हे देवों, तारकासुर से जो कष्ट आप सब लोगों को मिल रहा है, उसे दूर करने के लिए मैं अनिच्छा होते हुए भी पार्वती जी से विवाह करूंगा। अब तुम निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ। इस प्रकार देवताओं को आश्वासन देकर शिवजी मौन हो गए। श्री पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देव व मुनियों के चले जाने पर शिवजी ने पार्वती के तप की परीक्षा करने के लिए सब तृषियों को
स्मरण किया, उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती के पास जाओ। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। सप्तर्षि पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे जगदम्बे, आप किस लिए इतना कठोर तप कर रही हैं? पार्वती जी बोली, हे ऋषियों, मैं नारद जी की आज्ञा पाकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि हंसे और बोले, हे देवी, तुम बुद्धिमती होती हुई भी दुष्ट हृदय नारद के चरित्र से परिचित नहीं हुई। वह नारद कपटी है। उन्होंने अनेक घर चौपट कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए थे, उन्हें बहका दिया और वे फिर लौटकर नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर भी नहीं बसने दिया। प्रहलाद को भी उपदेश देकर पिता का शत्रु बना दिया। तुमने उसके वचनों का विश्वास करके निर्लज्ज, अमंगल मूर्त, नग्न भूत प्रेतों का संगी पति पाने का विचार किया। शिवजी ने दक्ष कन्या स्त्री को पाकर उसे क्या सुख दिया? वह भी पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है? तुम हमारे आदेश से अपने घर चली जाओ। सप्तर्षियों के वचन सुनकर पार्वती हंसी और बोली, हे सप्तर्षियों, आपने जो कहा वह सत्य नहीं है। मैं श्री नारद के वचन हितकर हैं। शिवजी निर्गुण, अजन्मा, मायारहित और विराट रूप है। मैं केवल गुरु कृपा से ही उन प्रभु को समझ सकी हूँ। यदि वह प्रभु मेरा पानी ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं कुंवारी रहकर अपना जीवित व्यतीत करूंगी। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। यह कहकर पार्वती शिव का स्मरण करके चुप हो गई। इसके बाद सप्तर्षियों ने पार्वती को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद देकर वे सब शिवजी के पास आ गए। उन्होंने उमा का सब समाचार सुना दिया और उनकी आज्ञा लेकर वहां से चले गए। सप्तर्षियों द्वारा पार्वती जी की परीक्षा लिए जाने पर भी शिवजी संतुष्ट नहीं हुए। वह स्वयं भगवती उमा के तप की परीक्षा लेने चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुंच गए। उसी समय शिवा ने उनका विधि विधान से पूजन अर्चन और सम्मान किया। ब्रह्मचारी वेदधारी शिवजी ने कहा, हे तपस्विनी, आप अपना परिचय दीजिए। आप बिना पति के इस वन में रहकर कठिन तप क्यों कर रही हैं? पार्वती जी बोली, हे विप्रदेव, मैं हिमालय की पुत्री हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष प्रजापति की कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग कर दिया था। इस जन्म में मेरे नाथ कामदेव को जलाकर और मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हीं के वियोग में संतप्त होकर तप कर रही हूँ, परंतु तप के द्वारा मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है। अतः मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। इतना कहते पार्वती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया, परंतु भगवान शिव की परम कृपा से अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। फिर ब्रह्मचारी रूप शिवजी ने कहा, हे देवी, आप धन्य हैं। आपको तो अग्नि भी नहीं जला सकती। आप अपना मनोरथ मुझे बताने का कष्ट करें। शिव पार्वती संवाद। पार्वती जी ने जटाधारी ब्रह्मचारी से कहा, हे विप्रवर, मैं मन, वचन, कर्म और संयम से शंकर के पति रूप से प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे यह भी याद है कि यह बहुत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह और उत्कंठा कम नहीं हुई, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। उमा के वचन सुनकर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी ने कहा, हे देवी, मैं गुरु धर्म के कारण शिव को भली भांति जानता हूँ। वे बूढ़े बैल पर चढ़ते हैं,
सदैव नग्न रहते हैं, भस्म जटा विभूति धारण करते हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव के साथ विवाह करके कौन सा सुख पाया था? हे देवी, तुम भ्रमित हो गई हो। तुम जैसी अपूर्व सुंदरी को तो विष्णु अथवा इंद्र जैसे रूपवान को अपना पति बनाना चाहिए। उनसे इतर केवल विरूपाक्ष शिव को पति बनाया मैं बुद्धिमानी नहीं समझता। उसमें वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव जी की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण से पार्वती जी ने अत्यंत कुपित हो गई। पार्वती जी बोली, हे विप्र, तुम्हें शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं वास्तव में शिव जी को जानती हूँ। वह तो परब्रह्म है। वह तो समस्त संसार में सबसे प्रथम अवतरित हुए। प्रकृति भी शिवजी से ही संपन्न हुई है। वह उसके कारण है। भगवान विष्णु शिव की कृपा से ही विष्णु बने हैं। ब्रह्मा भी उनके अनुग्रह से ब्रह्मा बने हैं। इंद्रादि देवी को जो देवता मिला है वह शिव की दया से ही प्राप्त हुआ है। तुम जैसे ब्रह्मांड निर्गुण शिव के रूप को नहीं जान सकते। शिव की विभूति के बिना जाने जो शिव की निंदा करता है उसके संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुमने शिव की निंदा की है। इतना कहकर पार्वती मौन हो गई और शिव जी के ध्यान में मगन हो गई। इस पर ब्रह्मांड ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, विद्या, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। यह फिर शिव की निंदा करेंगे, जिसे सुनने से मुझे भी पाप लगेगा। यदि यह निंदा करने से नहीं रुकता तो मैं यहाँ से उठकर जाती हूँ। जैसे ही पार्वती जी वहां से उठकर अनियत जाने को हुई, ब्रह्मचारी स्वयं शिव के रूप में प्रकट होकर पार्वती जी के समक्ष आ गए और बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैंने अनेक प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली है और तुम उसमें सफल रही। मैंने तुम्हारे सम्मान प्रणय की रक्षा करने वाली किसी स्त्री को त्रिभुवन में नहीं देखा। मैं तुम्हें यही वर देता हूँ कि तुम मेरी भायरा हो। भगवान की यह वाणी सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उसी क्षण उनके सभी कष्ट दूर हो गए। पार्वती जी शिव जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे बोली, हे नाथ, आप मुझे क्यों भूल गए? आप मेरे पूर्व से ही नाथ थे। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनकर मेरे वचन का पालन करें। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने पिता के घर जाकर उनसे यह सब कहूँ। आप मेरे पिताजी के पास जाएं और याचक बनकर मुझे उनसे मांगे। भगवान शंकर तथास्तु कहकर कैलाश पर आए। वहां नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तप सफल होने पर पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ पिताजी के घर की ओर गईं। हिमाचल, मैना, भ्राता और अन्य संबंधी पार्वती जी के आगमन का समाचार पाकर उनके स्वागत के लिए गए और पार्वती को सुंदर रथ पर बिठाकर नगर में ले आए। संगत जी, आपको ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा होगा कि जो हमें नहीं ज्ञान होता और आज हम शिव पुराण पढ़ के हम कितना खुश हो रहे हैं कि मैं तो इसका व्याख्यान भी नहीं कर सकती कि शिव माया का वर्णन। मैं मतलब क्या आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप शिव पुराण कथा जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब भगवान को पाना, शिव जी को पाना कितना मुश्किल है। और जब हमें भोले बाबा अपने भोले बाबा मिल गए हैं कि मतलब कहते हैं ना कि भगवान आगे होकर हमें खुद ढूंढ रहे हैं अपनी ही संगत को, और हम किस उसमें बैठे हुए हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये सब दुनियावी पदार्थ हैं। आप सोचिए कितनी कठिन भक्ति से पार्वती माँ जी ने 3000 वर्ष तप करके दोबारा उन्हें पाया।
तो आप सोचिए कि आपको तो बैठे बिठाए कहते हैं कि भगवान मिल गए, और उसके बाद भी हम शुक्राने नहीं करते हैं। और हमारे कितने प्यारे बाबा हैं कि हमें बोलते हैं कि शुक्राना करो। हम किस हर हमें तो ये भी नहीं, शुक्राने का अर्थ भी नहीं मालूम कि हम दुनिया के ब्रह्मांड के जो भगवान है हमारे, मतलब जो हम जिनका हम इतना हमें तो पता भी नहीं है कि भगवान का कैसे शुक्राना करना चाहिए। और भगवान हमें खुद कहते हैं कि शुक्राना करो। हम कैसे करें शुक्राना आपका? हमें तो कोई इतनी हमारी औकात नहीं है कि मैं अपने भोले बाबा के पास बैठी हूँ और उनको शुक्राना कर रही हूँ। भोले बाबा, आप मुझे मिल गए, मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई। मुझे पति का प्यार नहीं मिला तो ना से कोई बात नहीं, पर आज मुझे 29 सालों के बाद मुझे आप मिल गए। मैं आज 49 ईयर्स की हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना भोले बाबा, आप मुझे मिल गए, मेरा जन्म सफला हो गया। आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, साथ कभी मत छोड़ना। आप कृपा के सागर हो, कृपा निधान हो। आपने मेरे गरीबनी पे इतना तरस खाया। मेरा वो इम्तिहान चल रहा था, मुझे पता है, पर वो तो कुछ भी नहीं जो इतना कठिन तप करके पार्वती माँ ने आपको पाया है। मेरी तो कोई औकात भी नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ कि मुझे बोले बाबा ये अब चाहिए। मुझे तो पता भी नहीं आपको कैसे पाना है, पर बोले बाबा मुझसे आप दूर मत होना। बस जहाँ भी रखना अपने चरणों में रखना। मुझे अपने चरणों में परमानेंट घर दे दो सच्चे पातशाह। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी भक्ति कराओ, अपना नाम जपाओ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपने मुझे इतना बड़ा कहते ना कि एक राइट दे दिया है कि मैं आपको बापूजी कह सकती हूँ। बापूजी कि मैनू आपकी लोड़ है। अब मुझे ऐसे करके याद करके पुकारा कर जब तुझे मेरी जरूरत होती है। बापूजी मुझे आपकी ज़रूरत है। आपके बच्चों को, जो सिमरन गुरप्रीत को आपकी ज़रूरत है। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है बापूजी। हमें किसी का प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ आपका चाहिए। जिन्होंने हमें छोड़ दिया, बस हमें उनसे मिलने का कोई वो नहीं रास्ता हमें चाहिए। हमें सिर्फ आपको मिलने का, आपको पाने का रास्ता बता दो। अब अपने चरणों की प्रीति बख्श दो। हमारा हाथ हमेशा पकड़ी रखना। हमें अपना दामन पकड़ा के रखना। हमें अपने रास्ते लेके चलो। हमें बस जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपका पानी, आपका आठ पूजा सिमरन भक्ति जिसमें मगन सारी दुनिया, जहाँ आपके गुण गाती है, बस उस दुनिया में ले चलो बाबा। मुझे सिर्फ आप अपनी भक्ति दे दो बाबा। मुझे सिमरन को, गुरप्रीत को अपनी भक्ति दे दो, अपना बना लो। भोलेनाथ अपना बना लो। भोलेनाथ मेरे शिव शंभू भोलेनाथ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।